ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کے ساتھ میں ہوں جی حافظ نعمان چودھری۔ جی آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے اور آج رمضان المبارک کا وہ بابرکت دن ہے اور آنے والی وہ بابرکت رات ہے جس رات کو نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ رات اتنی عظمتوں والی برکتوں والی رات ہے، اتنی عظمتوں والا برکتوں والا دن ہے کہ جس دن کو قرآن پاک مکمل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا گیا۔ ناظرین کرام، ہمارا جو پروگرام ہے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ماہ 26 دن، آج 26واں پروگرام ہے ہمارا، اور یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، جس نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم نے اس کی دی ہوئی طاقت سے آج الحمدللہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن پورا ماہ لے کر چل رہے ہیں۔ اور میں خاص طور پر اس جگہ پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چینل کی انتظامیہ کو، خاص طور پر اس چینل کے مالک جناب چیئرمین الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں وسیم اکرم ذکی صاحب اور حسیب ذکی صاحب کو، اور ان کے ساتھ ساتھ خاص طور پر حافظ نعمان صاحب، جنہوں نے اس پروگرام کو ایک اپنا ٹائم دے کر، قیمتی ٹائم دے کر اس پروگرام کو چلایا، اس پروگرام کی ایڈیٹنگ کی، اس پروگرام کو جو ہے نا عوام الناس ہمارے ناظرین کے سامنے لے کر آئے۔ یہ سارے دوست قابل عزت اور قابل احترام ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کے کام میں اپنا ٹائم جو ہے نا لگایا ہے، کیونکہ جو دین کا کام کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو پسند فرماتے ہیں وہی دین کا کام کرتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ انہوں نے تعاون کیا، ان کے تعاون سے، ان کی محنت سے آج الحمدللہ ہم 26واں پروگرام جو ہے وہ نزول قرآن پر آج ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے ناظرین کے ہم سامنے موجود ہیں۔ میں ان کو یعنی کہ دل کی عطا گرائیوں سے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ بات جو کرنے والے ہیں وہ کرتے رہ گئے، لیکن ہم نے کام کر کے دکھایا، اور کام ایسا کیا جو ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کی زبان پر ہے، لوگ اس کو مانتے بھی ہیں اور لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے پروگرام اس انداز سے کیا کہ ہم نے ہر روز ایک نیا عالم دین اپنے ناظرین کے سامنے لائے، نیا شناخت مصطفیٰ اپنے ناظرین کے سامنے لائے، اور مختلف موضوعات پر ہم نے ضروری مسائل پر گفتگو کی، ہم نے روزے کے مسائل پر گفتگو کی، ہم نے رمضان المبارک کی فضیلت پر گفتگو کی، جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہیں اس مسائل پر گفتگو کی۔ اور میں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے یہ پروگرام کیا ہے، جو ہم کو آپ نے توفیق دی ہے، اس کا جو ہم نے اپنی نیکی کے لیے، اپنی راہ آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہم نے محنت کی ہے، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما کے اس کا جو اجر و ثواب عطا کیا ہے وہ ہمارے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں، خاص طور پر جو چینل کی انتظامیہ ہے، جو چینل کے مالک ہیں، سی او صاحب ہیں، وائس چیئرمین صاحب ہیں، اور جو ہیڈ ہیں جو چینل کو چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کی محنت وہ بھی قابل عزت ہے۔ انہوں نے بھی محنت جو ہے، حافظ نعمان صاحب آج میرے ساتھ وہ میزبانی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور یہ پابندی کے ساتھ اس پروگرام کو، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کو پابندی کے ساتھ ریگولر یہ جو ہے نا چینل پر لاتے رہے ہیں، یہ ان کی کاوش ہے۔ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج کی جو رات ہے وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، ہم نے جس طرح پہلے بھی نماز کے موضوع پر بھی گفتگو کی ہے اور بھی بہت سے موضوعات پر گفتگو کی ہے، اور مجھے آج سب سے زیادہ جو خوشی ہے کہ میرے پروگرام میں آگے بھی آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ ایک عالم دین ہوتے ہیں، ایک ثناء خوان مصطفیٰ ہوتے ہیں،
आज जो मेरे प्रोग्राम की जिस चीज़ की मुझे बेहद खुशी है कि मेरे प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिनकी इस प्रोग्राम में काविश भी है, जो इस शहर में रहकर गरीब आवाम की आवाज़ भी बन रहे हैं, जो इस शहर में रहकर अपने चैनल के ज़रिए अपनी ताकत, अपनी आवाज़ के ज़रिए जो गरीब आवाम की आवाज़ है वो हकाम बाला तक पहुँचा रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का तारफ़ इस अंदाज से कराऊँगा। मेरे साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इस चैनल के मालिक हैं, चेयरमैन साहब हैं, जनाब अलहाज हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, और साथ में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑनर भी हैं, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर के ऑल पाकिस्तान के जो है ना चेयरमैन भी हैं। और इनकी जो है ना बड़ी मेहनत है, इन्होंने चैनल को चलाने के लिए बड़ी मेहनत की। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका, आपने चैनल को लिए जो आपने मेहनत की है ये अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाए। इनके साथ साथ मेरे साथ जो हैं वो वाइस चेयरमैन जनाब हसीब ज़की साहब, वो तशरीफ़ फरमाया। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आवाज़ सिटी 49 की शान माह रमज़ान को टाइम दिया। उनके साथ साथ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है सना खान मुस्तफ़ा, बड़ी ही उन्होंने अपनी आवाज़ से, अपने जो है ना सोच से, जिस तरह वो हजूर अलैहिस्सलाम की सना खानी करते हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया है। उन्होंने इस ज़िला कसूर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ज़िला कसूर का नाम रोशन किया है। मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद ज़हीर अतारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इनके साथ साथ आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ जो मसाइल पर गुफ्तगू करनी है, वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। वो इस पूरे ज़िला कसूर में उनका एक नाम है और अल्लाह ताला ने उनको इल्म से भी नवाजा हुआ है। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद हामिद अली कादरी अशरफी साहब, और ये अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल हदीस, आप जनाब किबला शेखुल हदीस साहब के साहबजादे भी हैं, मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनके अल्हम्दुलिल्लाह ये लगते जिगर हैं। और इन्होंने और इनके वालिद गिरामी ने जिस तरह ज़िला कसूर में एक दीन का झंडा लगाया हुआ है, वो इंशाअल्लाह वो आज तक नहीं बल्कि वो क़यामत तक कायम रहेगा। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इनको इसी तरह दीन की खिदमत करने वाला बनाए, इसी तरह ये अपनी ज़िंदगी में रहती ज़िंदगी तक दीन का झंडा बुलंद करते रहें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने टाइम दिया आवाज़ सिटी 49 को और शान माह रमज़ान को। उनके साथ साथ मेरे साथ जो मौजूद हैं नौजवान हैं और बड़े जो है ना जोशीले अंदाज में ये क़यादत भी करते हैं, और ये इनका एक जज्बा है कि अवामी खिदमत का जज्बा रखते हैं, जनाब वसीम अकरम ज़की साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है ना आवाज़ सिटी 49 और शान माह रमज़ान को टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज चैनल की जो मेन इंतज़ामिया है वो भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ये इनकी सारी दुआओं का, इनकी मेहनत का सिला है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मेरे साथ हाफिज़ साहब मौजूद हैं, वो आगे जो है ना वो कंटिन्यू फरमाएंगे। सबसे पहले जो है ना हाजी साहब से जो है ना बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी करवाया चैनल के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से। आपकी जो काविशें हैं, जहां आपने सारी टीम की तारीफ़ की, मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा खराज तहसीन के मुस्तहिक आप हैं। आपने अपना टाइम भी दिया, मेहमानों को इनवाइट किया, टाइम पर पहुंचे, हर चीज़ को मैनेज किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। सबसे पहली चीज़ है कि इसमें हमारे अल्लाह पाक का करम, उसके बाद हमारी टीम की नेक नियति है कि हम अपने काम के लिए सिंसियर हैं। भाई साहब अपने चैनल के लिए क्या सोचते हैं या उनके ज़हन में क्या प्लान है, आज हमने इस पर भी साथ गुफ्तगू करनी है। तो जैसा कि आप सब ने कहा है कि आगाज़ इसी चीज़ से करते हैं, तो भाई साहब आवाज़ सिटी 49 एक छोटा सा शहर कसूर, कैसे ख्याल आ गया कि ये हमें चैनल बनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाफिज मान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर 49 न्यूज़ चैनल, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हाफिज ज़हीर साहब को, मुझे पहले यकीन नहीं आता था कि हाफिज साहब रेगुलर पूरा माह चल पाएंगे। जब मैंने हाफिज साहब का प्रोग्राम पहला देखा तो मुझे यकीन हुआ कि ये हाफिज साहब इंशाअल्लाह रेगुलर हमारे साथ चलेंगे। माशाल्लाह हाफिज साहब, हाफिज ज़हीर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। मैं इंतहाई खुश हूँ, मुतमिन हूँ कि मैंने जो काम शुरू किया था वो कामयाबी के साथ जारी व सारी है। मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मैंने जो ये छोटा सा
चैनल शुरू किया था 1 साल के अरसा में, उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। तो मैं अपने चैनल की तमाम टीम को, खासकर कैमरामैन, न्यूज़ कास्टर और फील्ड के जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, जो दिन रात ये नहीं देखते धूप है, छाँव है, रात है, सुबह है, जब भी उनको महसूस होता है कि यहाँ हमारी ज़रूरत है चैनल को, वो फ़ौरन हाज़िर होते हैं। मैं आप सब के ताउन का इंतहाई मशकूर हूँ और सबको दिल की इत्तेफाक गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ। तो दूसरा, हाफ़िज़ साहब आपने मुझसे सवाल किया है कि आपके दिल में कैसे बात आई कि कसूर जैसे पसमानदा ज़िला और छोटे से शहर में ये टीवी चैनल बनाया जाए। पहले तो ऐसे ही जैसे दोस्त बैठे आपस में बातें करते हैं, यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने फील्ड में आया हूँ ये न्यूज़ चैनल की, तो मैं पहले ऑलरेडी सहाफ़ी हूँ, अब भी मैं उसाफ का कसूर का ज़िला कसूर का ब्यूरो चीफ हूँ। तो सहाफ़त से मेरा तल्लुक़ तो बहुत पुराना है, लेकिन मेरा इस फील्ड में तजुर्बा नहीं था। तो हमने हाफ़िज़ साहब से मुलाकात की, शुरू में जाके इनके घर गए हम बुढ़ाना, इनसे मशावरत की कि हाफ़िज़ साहब हमारा वेन है कि ऐसे चैनल हम लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कोई तावन करें, हमको इस फील्ड में कोई तजर्बा नहीं है। मेरे साथ 2 और दोस्त थे, जिनमें मलक हाजी मोहम्मद आसिफ साहब एक और दोस्त थे हमारे, मैं उनका भी मशकूर हूँ, वो आज नहीं है इधर, हमारे साथ नहीं हैं। तो हाफ़िज़ साहब ने कहा कि आप काम शुरू करें, जहाँ तक हुआ मैं आपकी मदद करूँगा। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हाफ़िज़ साहब का, उस दिन से आज के दिन तक जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, हमें नहीं ज़रूरत, अब हाफ़िज़ साहब को ही पड़ती है, ये बुलाते हैं हमें कि जी यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता, भी साल में 2-3 दफ़ा इन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी कर रहे हैं ये खुद कर रहे हैं। सर दर्द है तो इनका ये है, जो भी है चैनल का यही कर रहे हैं। CEO भी ये हैं, चेयरमैन भी ये हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये हैं, और नुमाइंदगार के इंचार्ज जो भी चैनल के हैं ये हैं। हम तो सिर्फ नाम के हैं। शुक्र है अल्लाह का कि हमें एक अच्छा साथी मिला। दूसरी बात रही ये कि ज़िला कसूर के लिए अक्सर ज़हन में आता था कि लाहौर से ये गाड़ियाँ मंगवानी पड़ती है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। मैं खुद अक्सर कई दोस्तों को फ़ोन करता था, मेरा तल्लुक़ था 1-2 चैनलों में, या ख़ासकर जब ज़ैनब शहीद का वाक़या हुआ, उस वक़्त मुझे इंतहाई महसूस हुआ कि हमारे शहर में भी कोई ऐसा एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए कि जो हमारी बर वक्त खबर फ़ौरन अवाम को पहुँचे। तो उन्हीं दिनों में हमने फ़ैसला किया था कि हम कसूर की सतह पर एक ऐसा चैनल बनाएं जो फ़ौरन खबर, हम लाहौर न्यूज़ चैनल के नुमाइंदों की तरफ ना देखें, उनकी गाड़ी का इंतज़ार ना करें। तो उन्हीं दिनों में हमने ये फ़ैसला कर लिया था फिर कि ये चैनल फ़ौरन हमें लॉन्च करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च किया। कसूर के गरीब आवाम की आवाज़ बने हम, और इंशाल्लाह बनते रहेंगे। मैंने पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम में कहा है कि ये गरीब लोगों के लिए चैनल बनाया है, मज़लूम लोगों की आवाज़ है। जिस गरीब की आवाज़ अवाने बाला तक नहीं जाती वो हमसे रब्ता करे, हमारा नुमाइंदा उसके घर आकर उसका इंटरव्यू करेगा, हम उसकी आवाज़ को अवाने बाला तक पहुंचाएंगे, उसकी आवाज़ को पुलिस के आला हकाम तक पहुंचाएंगे। किसी के साथ कोई ज़्यादती है वो हमसे रब्ता करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम फी सबीलिल्लाह दिली तौर पर खुश होंगे कि हम इसका काम कर रहे हैं। हम कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। 1 साल हो गया है, कोई आज तक कह दे कि फलां चैनल वालों ने हमसे कोई डिमांड की है, हमसे कोई फीस ली है, हम अपनी जेब से कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारी ऐसी नेचर है कि हम किसी ऑफिसर को ब्लैकमेल करें और ना किसी ताजर को ब्लैकमेल करें। दूसरी मेरी आला हकाम से, अफसरान बाला से गुजारिश है कि आप भी कोई खुदा का खौफ आया करें, थोड़ी बहुत ही आवाम का जो काम है वो सीधे तरीके से कर दिया करें, उनको चक्कर पे चक्कर ना लगाया करें। आखिर मजबूर होकर ये जो नुमाइंदे हैं उनका वो सहारा लेते हैं, यहाँ तक बात ही नहीं आनी चाहिए। तो और भी बहुत सी बातें हैं, वक्त की कमी है। इन्होंने मुझे तो कहा था कि 5-6 मिनट आपने से बात करनी है, लेकिन सब मकसद ये बातें था, तो बहुत है, बातें करने को तो बहुत है।
हाफिज जहीर साहब ने दूसरा कहा जी ये ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ओनर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं। ये बात हकीकत है कि मैं ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन हूँ, फेडरेशन का चेयरमैन भी हूँ। तो मेरी आजकल हम जो ट्रांसपोर्टर है ना इंतहाई मजबूर और लाचार हो गए हैं। वजह क्या है, लोग तो समझते हैं बड़े माली हालात इनके ठीक हैं। आज की मैं आपको बात करता हूँ, आज सुबह DSP सिटी हमारे D क्लास स्टैंड शबार रोड पे आए तो उन्होंने कहा जी आपने SOPs के तहत चलना है। हमने कहा जी हम तो खुद SOPs के पाबंद है, हम तो दूसरे ट्रांसपोर्टरों को भी कहते हैं कि SOPs के मुताबिक चला जाए। तो कहने लगे नहीं जी 2 सीट पे 1 पैसेंजर बैठाना है। हमने कहा जी हम ऐसे ही बैठा रहे हैं। तो कहने लगे जी किराया 1 सवारी का लेना है। वो बंदे खुदा के SOPs बनाने वालों तुम्हें कोई, मैं तो परेशान हूँ ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, कुछ नहीं सोचती। सवारी 2 और सवारी एक जगह 2 की, सवारी की 2 सीटें जी, पैसेंजर 1 हाँ जी, और किराया भी 1 किराया भी। 1 सवारी का किराया। फर्ज किया हम कसूर से लाहौर का 120 रुपये ले रहे हैं जी। तो 2 सीटें देंगे 120 रुपये में, हमें कितने मिलेंगे? 28 गाड़ी में सीटें हैं जी, 28 सीटें का हमें कितने मिल जाएंगे? 14 लोगों के मिलने हैं ना जी, 14 और 2 1600 रुपया हमें मिलेगा जी। तो हमने 1600 में हम डीजल डलवाएंगे, गाड़ी का खर्चा निकालेंगे, रास्ते में 600 रुपया तो रास्ते में ये गवर्नमेंट की पर्ची अदा करनी पड़ती है। टूल प्लाजे हैं, बल्दिया की फीस है, लाहौर कारपोरेशन की फीस है। हमने किस किस को देना है? ड्राइवर ने लेने हैं, कनेक्टर ने लेने हैं, हाकरों ने लेने हैं। हम तो सर पकड़ के बैठ गए हैं। बेहतर था गवर्नमेंट कहती कि लॉकडाउन है, जितने दिन लॉकडाउन है आप गाड़ियां खड़ी कर दें। ये जलालत से अच्छा था कि हम सुकून से बैठ जाते। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट काम करते वक्त कुछ नहीं सोच रही, अल्लाह के सुपुर्द करते हैं जी ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, उसका वो आल फाल नहीं निकालते कि इसमें प्रॉफिट है नुकसान है। वो कहते हैं कोई मरता है मरे, हमारी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकल गया है वो हरफन मौला हो गया जी। जी ऐसा बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हालात बिल्कुल इस किस्म के बन चुके हैं। और ये जो आपने चैनल की बात की है ये काबिल तारीफ़ है और मैं आपको ये मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वाकई एक गरीब आवाम को दाना बनाया है कि जहाँ पे वो अपने दुखड़े सुना सकते हैं। ये दुखड़े सुनाने वाली बात है। मीडिया का जो चैनल है, मीडिया की जो आवाज़ है, ये दुख सुनने वाली आवाज़ है। आप इसका सहारा बने, अल्लाह ताला ने आपको इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला ने देना है। तो नाज़रीन अभी जो है ना वक्त जो है वो हमारा ब्रेक की तरफ ब्रेक हुआ है, छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम इंशाल्लाह जो है ये चैनल की तारफ़ के बाद हम इंशाल्लाह डायरेक्ट जो है लामा साहब की तरफ चलेंगे जो हमारा मेन प्रोग्राम है, उनसे जो है ना स्टार्ट करेंगे। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह सर्विस, तेज तरीन और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, दौरान सफर वाईफाई इंटरनेट की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान नाज शरीफ सुनिए, अपनी पसंद का ड्रामा या मूवी देखें और लुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। आज ही अपनी एडवांस सीट बुक करवाएं। फौरी बुकिंग के लिए राब्ता करें 0300 94 65 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। 0300 94 65 990। जी नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन जिस तरह आप पहले गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे, हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब ने अपने व्यू अपना जहन बताया कि उनका चैनल बनाने का जो मकसद है वो क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि आज उनका चैनल बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो गया है।
کیونکہ ان کا جو مقصد تھا غریب کی آواز بننا، جو ہے نا ظالم کے جو ہے نا آگے دیوار بن کے کھڑے ہونا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ ان کا مشن تھا اور وہ آج مشن میں پورے ہو گئے ہیں اور الحمدللہ وہ غریب کی آواز بھی بن رہے ہیں اور جو ہے نا مظلوم کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ظالم کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ اور جو دینی پروگرام انہوں نے جو آرگنائز کیا ہے، جو دینی پروگرام شان ماہ رمضان چلایا ہے، اور الحمدللہ یہ کامیابی کی ایک ایسی سیڑھی ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، اور اس کا جو صلہ ہے وہ الحمدللہ جو ان کے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ سارا یہ 26 دن جو 25 دن پہلے ہم نے حضور کی تعریف کی ہے اور ہم نے صرف اور صرف اس لیے کیا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگا سکے۔ تو ناظرین، جیسے کہ میں نے تعارف بھی کرایا تھا، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اہم موضوع ہے، نزول قرآن کا موضوع اور بڑی بابرکت رات ہے، اور یہ نزول قرآن کا جو موضوع ہے یہ بھی بڑا پیارا موضوع ہے، کیونکہ نزول قرآن وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری کی ساری تعریف ہے وہ قرآن ہے، سارے کا سارا قرآن ہے۔ اور یہ ایسا ہے کہ پہلے نبی جب آئے، دنیا میں آئے، پہلے نبیوں کو جتنی بھی کتابیں ملی ان کو ایک جگہ پر ایک مقام پر بلایا گیا، ان کو ایک مقام پر بلا کر انہیں کتابیں عطا کر دی گئی اور انہیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ کتابیں لے جائیں اپنی امت کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنی امت کو بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے۔ لیکن جب پیارے آقا حضور علیہ السلام